Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain another poem of class 9th English book. The poem is Rain on the Roof, and the poem which is written by Curtis Kinney. And from the title of the poem itself, it's very clear that the poem is about रेन। एंड इस पोएम में जो है पोएट यही बता रहे हैं उसकी जो मेमोरीज जो है रेन के बारे में, उसके लाइफ में जो मेमोरीज है वो मेमोरीज के बारे में पोएट इस पोएम के जरिए हमें बता रहे हैं। एंड द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स जो है उसके रूफ पे जो रेन ड्रॉप गिरते हैं उसकी जो आवाज़ है और उस आवाज़ के बारे में है यहाँ पर। और वो आवाज़ जो है उसको स्वीट मेमोरीज लेके आते, पुरानी जो बातों को याद दिलाते हैं, उसके बारे में है ये ये पोएम। सो लेट अस सी अबाउट दिस पोएम। सो द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम इज When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. In this first stanza, the poet is saying that when the humid shadows hover, the poet remembers about the rain. He says that humid shadows means it is the dark clouds which are full of water. And he says that the poet is saying that when the sky is full of these clouds which are moisture laden, are full of water and are about to bring rain, when such clouds hover around the sky. तो ऐसे क्लाउड्स जो है जब दिखाई देते हैं, बादल जब दिखाई देते हैं जो फुल ऑफ वाटर जो है, ऐसे जो क्लाउड्स दिखाई देते हैं उस टाइम यही लगता है कि बारिश की पूरी संभावना है। And overall, the starry spheres means to the sky at night time, which is full of stars. तो जो starry spheres जो है, वो spheres also say that it is going to rain. And at that time, huge clouds which are full of moisture move around in the sky, and the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops which seem like tears falling from the sky. And उसी टाइम में जो स्टारी स्फीयर है, and उसी टाइम we can see the moisture all around, and we can also feel the raindrops falling, and it seems like tears falling from the sky से आंसू जो है, आंसू निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। The poet is comparing raindrops to tears, and he says that the dark sky which seems to be very sad, it appears as if it is crying, and the raindrops are the tears shed by it. and इस पोएम में जो है पोइट जो है रेन ड्रॉप को टीयर्स से कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं द डार्क स्काई जो है जो हमें वेरी सैड दिखते हैं, एंड हमें लगता है कि वो रो रहे हैं, एंड इस वजह से जो रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेड बाय इट। एंड जो क्लाउड्स जो है क्लाउड्स सैड दिख रहे हैं, और पोएट के हिसाब से जो क्लाउड्स सैड होने के बाद वो क्लाउड्स रोते हैं, एंड रोने के बाद जो आंसू है वो आंसू नीचे गिरते हैं, और इसलिए पोएट जो है रेन ड्रॉप्स को टीयर्स से कंपेयर करते हैं। He adds that it is like a blessing to lie on the bed in his room and listen to the sound made by the raindrops falling on the roof. उसके बाद पोएट ये भी कह रहे हैं it is very pleasant and it is very pleasant blessing है ये अपनी जो घर पे जो बेड है, रूम में जो बेड है वो बेड पे लेटता रहूं, और लेटने के बाद जो रेन की जो आवाज़ है वो आवाज़ मैं सुनता रहूं, वो बहुत अच्छा लगता है। सो द नेक्स्ट स्टांजा इज एवरी tingle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies
into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. In this stanza, the poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house. जब बारिश जब रूफटॉप में गिरते हैं तो उसकी आवाज़ से जो है उसकी आवाज़ से पोइट को अपनी जो बहुत सारी फीलिंग्स जो है पुरानी फीलिंग्स भी याद आ जाते हैं. एंड ही सेज दैट एवरी टिकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट. हर एक ड्रॉप जब रूफ पे गिरते हैं तो उसके हार्ट में उसकी एको आ जाते हैं, आवाज़ उसके हार्ट में झलकते हैं. And whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart. रूफटॉप में जो बारिश के बूंद गिरते हैं उसकी जो आवाज़ है उसकी आवाज़ उसके हार्ट में भी रिपीट होते हैं एंड उसके ड्रीम में भी, एंड हैज़ मेनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन. उसी से उसके दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशंस पैदा हो जाते हैं. एंड ही ऑल्सो एड्स दैट दिस साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ creates many new different dreams in his mind. तो जो बारिश की जो आवाज़ है वो आवाज़ जब रूफ में गिरते हैं तो उसके दिमाग में बहुत सारी ड्रीम्स, बहुत सारे सपने आते हैं. He also recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. And so he says that he listens to the patter of the rain upon the roof. He has many new dreams in his mind and the memories of the past come back in the form of dreams. तो इस जो लाइन में है, ये जो लाइन है, लाइन में पोइट यही कह रहे हैं कि उसकी जो पुरानी बातें जो है पुरानी बातें याद आ जाते हैं. एंड द नेक्स्ट स्टैंजा इज नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Here in this stanza, the poet introduces his mother. अपनी मदर के बारे में कह रहे हैं. He says that he dreams about his mother. And as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past, it is the memory of his mother who is no longer alive. And जैसे उसने पिछले स्टांसर में यही बताया था कि उसके पुरानी यादें आ जाते हैं, पुरानी बातें याद आ जाते हैं. तो उस बात में ये है कि उसकी जो मम्मी जो है, उसकी मदर जो एक्सपायर हो चुकी है, उसकी याद आ रही थी उसको. एंड इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम ए लॉट. पास्ट में उसकी मदर जो है उसको बहुत प्यार करती थी. एंड सो शी ऑल्सो यूज्ड टू कंसिडर हिम ए डार्लिंग एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स. तो वो उसको अलाउ करती थी, पूरे डे ब्रेक तक सोने के लिए अलाउ करती थी. एंड ऑल्सो इसलिए द पोइट हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ मेमोरीज अबाउट हिज मदर. And the poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops. So जैसे raindrops जो आवाज़ कर रही है, जब रूफ टॉप में जब गिरते हुए आवाज़ जब आती है, उसी टाइम उसकी मम्मी की भी याद उसको आ जाते हैं. उसको ऐसे लगता है कि उसकी मम्मी उसको देख रहे हैं. जो आवाज़ से उसको यही अंदाज़ा लग रहा है. And the poet, now the sound of the rain makes him correlate his past with his present. तो जो रेन जो है यहाँ पर, जो रेन की जो आवाज़ है, वो रेन की आवाज़ उसको अपने प्रेजेंट और पास्ट से मिला रहे हैं. And then that is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. तो इसीलिए वो अपनी जो रूफ पे जो बारिश गिर रहा है उसकी आवाज़ से इतना लगाव दिखा रहे हैं. क्योंकि रूफ पे जब आवाज़ जो पानी गिरते हैं तो वहाँ किसी को तो कुछ तो लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पोइट के लिए ये जो रूफ में जो बारिश गिर रहा है वो बारिश एक लिंक बन गया, पुराना और पास्ट और प्रेजेंट का एक लिंक बन गया. उसकी मम्मी और उसके बीच का एक लिंक उसको याद आ गया.
And whenever he hears this sound, it brings back memories of the past and he is reminded of his mother. और जब भी वो अपनी जो रूफ में जब बारिश गिरती हुई आवाज़ जब सुनते हैं तब सब उसको ये जो अपनी मम्मी याद आ जाती है. And that is the theme of this poem and that's the explanation of this poem. Thank you very much. Thank you.